محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی. پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا تھا کہ اس ہاتھ کی انگلی میں بچھو نے کاٹ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پاپوش مبارک کے ذریعہ اس بچھو کو مار ڈالا، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ بچھو پر اللہ کی لعنت ہو، نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو، یا یہ فرمایا کہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمک اور پانی منگوایا اور دونوں کو ایک برتن میں گھول دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو جو برتن میں تھی یعنی پانی اور نمک کو انگلی کے اس حصے پر ڈالتے جاتے تھے جہاں بچھو کاٹا تھا اور انگلی کو ملتے جاتے تھے. نیز قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے تھے. ان دونوں روایتوں کو باہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو 3 باتوں کے لیے پیدا کیا ہے. ایک تو یہ کہ ان کو آسمانوں کی زینت بنایا، اور دوسرے شیاطین و جنات کو مارنے کے لیے، اور تیسرے علامات کے لیے کہ لوگ ان کے ذریعہ جنگل و دریا میں اپنا راستہ پا سکیں. لہٰذا جس شخص نے ان ستاروں میں ان 3 باتوں کے سوا اور کوئی غرض بیان کی تو اس نے خطا کی، اپنا حصہ ضائع کیا، اور پھر اس چیز میں تکلف کیا جس کو وہ نہیں جانتا، یعنی آسمان کی چیزوں کے بارے میں جو حقوق ہیں ان کا علم قرآن و سنت کے علاوہ اور کسی ذریعہ سے حاصل ہونا ممکن نہیں. اور جب قرآن و سنت میں ستاروں کی غرض ان 3 باتوں کے علاوہ اور کوئی بیان نہیں کی گئی ہے تو مذکورہ باتوں کے علاوہ کوئی اور غرض بیان کرنا ایسی بات کا بیان کرنا ہے جس کا معلوم ہونا متصور ہی نہیں. اس روایت کو بخاری نے بغیر سند کے نقل کیا ہے، اور رزین کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس نے اس چیز کا تکلف کیا جو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، اور اس چیز میں تکلف کیا یعنی اس چیز کو جاننے کا دعویٰ کیا جس کا اس کو علم نہیں ہے، اور اس چیز میں تکلف کیا جس کے علم سے انبیاء اور فرشتے عاجز رہے ہیں. ربی نے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں کہ قسم ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ نے ستارے میں نہ تو کسی کی زندگی یعنی پیدائش مقرر کی ہے، نہ کسی کا رزق یعنی مال و جا وغیرہ، اور نہ کسی کی موت. اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ کہن اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹی افطرا پردازی کرتے ہیں، اور ستاروں کے تو غروب ہونے کو کسی واقعہ و حادثہ کی علت قرار دیتے ہیں. تشریح: اپنا حصہ ضائع کیا کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اس طرح لا یعنی باتوں اور بیکار امور میں مبتلا کیا کہ جن کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں حاصل ہوتا ہے اور نہ آخرت میں حاصل ہونے والا ہے. اس طرح اس نے گویا اپنی عمر عزیز کا قیمتی حصہ گنوایا. آغاز سے قبل ایک نظر آج کی اہم سرخیاں. علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کا مقصد ترقی، خوشحالی اور بے روزگاری کا خاتمہ. BRS حکومت ان خوابوں کو پورا کرنے میں 100% کامیاب. ضلع میں ایئرپورٹ کا قیام زیر غور. MLC کے کویتا. شب برات و ماہ سیام کی تیاریوں میں کوئی کسر باقی نہ رہے. مساجد کے راستوں کی مرمت و اطراف روشنی کے ساتھ ساتھ عید الفطر کی تیاریوں کے لیے جلد ٹینڈر کیا جائے، اور کتوں کی کثرت پر قابو کے لیے اقدامات ضروری. MIM قائدین کی میونسپل کمشنر کو یادداشت. تحریک تلنگانہ کے جہد کر و حرکیاتی جماعت سال BRS سینئر
हकायत तारिक अंसारी, तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन नामजद, चीफ मिनिस्टर ने अहकामात हवाले किए, अवाम में खुशी की लहर व जश्न। अब खबरें तफसील से। बड़ी मेहनत से हासिल किए तेलंगाना में ख्वाबों को हकीकत में तब्दील किया जा रहा। जिले में एयरपोर्ट की तामीर ज़ेरे गौर है। सनती तरक्याती कामों में IT हब बनाया जाना पहला तरक्याती कदम। MLC के कविता का बयान। निजामाबाद जिले के कलेक्ट्रेट के करीब तामीर किए जाने वाले IT हब के कामों को अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता के हमरा MLC के कविता ने भी मुशाहिदा किया। IT हब के वेबसाइट के मुतालिक BRS पार्टी NRI ग्लोबल कन्वेनर बिगला महेश गुप्ता ने तफसीलात से आगाह किया। इस मौके पर MLC के कविता के हाथों IT हब निजामाबाद वेबसाइट का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि जिले में सनती तरक्याती कामों में IT हब से आगाज अमल में लाया गया और ऐसे कई सनती मराकज़ निजामाबाद में इनेकाद किए जाने हैं। IT हब का जल्द ही इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। नौजवानों के लिए एक खुशखबरी है। IT हब का निजामाबाद में आगाज के लिए दिलचस्पी लिए जाने पर CM KCR IT वजीर KTR से MLC के कविता ने इजहार तशक्कुर किया। इस IT हब का जल्द ही रियासती IT वजीर KTR के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। 50 करोड़ की लागत से बनाए गए IT हब में 750 नौजवानों को मुलाजमत के मौके फ्राहम हो सकते हैं। अब तक 200 से ज़ायद सीटों का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। देश भर के IT एक्सपर्ट्स में तेलंगाना दूसरे मुकाम पर मौजूद है। जिले में एयरपोर्ट बनाए जाने के लिए भी ज़ेरे गौर है। శ్రద్ధ తీసుకొని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు అదేవిధంగా IT శాఖ మంత్రులు KT రామారావు గారు నిజామాబాద్ యువతకి ఉద్యోగ కల్పన జరగాలనేటటువంటి సదుద్దేశంతో నేను మా MLA గారు గణేష్ గుప్తా అన్న గారు, మహేష్ బిగాల గారు, మా మేయర్ గారు, మా లలితమ్మ గారు, చైర్మన్ గారు, ZP చైర్మన్ గారు అందరం కూడా రిక్వెస్ట్ చేసిన మీదట 50 కోట్ల రూపాయలతోని IT హబ్ను మనకు మంజూరు చేయడం జరిగింది. దాన్ని ఇదివరకే కొన్ని జిల్లాల్లో జరిగినటువంటి IT హబ్లతో కూడా మనం పోల్చి చూసుకొని అక్కడ ఉన్నటువంటి లోటుపాట్లన్నింటినీ కూడా సరి చేసుకుంటూ ఇక్కడ మరిన్ని వసతులతోని చాలా పెద్ద ఎత్తున IT హబ్ నిర్మాణాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. ఇవాళ ఇక్కడ కడుతున్నటువంటి IT హబ్ 50 కోట్ల రూపాయలతోని 50,000 స్క్వేర్ ఫీట్లతోని నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. ఇందులో దాదాపుగా 750 మంది మన ఎంప్లాయీస్కి ఉద్యోగస్తులకు అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పటి వరకు మనం చూసింది ఏంటంటే జనరల్గా ఖమ్మంలో IT హబ్ కడితే ఎన్ని ఉద్యోగాలు వస్తే అందులో దాదాపు 70% మంది మా ఆడబిడ్డలకి ఉద్యోగాలు రావడం జరిగింది. ఈ సాఫ్ట్వేర్లో పీజీలు డిప్లొమాలు చేసినటువంటి పిల్లలు, డిగ్రీలు చేసినటువంటి పిల్లలు, కొద్దిగా కంప్యూటరు వాటికి సంబంధించి అనుబంధంగా ఉండే కోర్సులు చేసినటువంటి ఎంతోమందికి కూడా ఉపాధి కలిగినటువంటి సందర్భాన్ని మనం ఇతర జిల్లాల్లో చూడడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా చూసినట్టయితే తెలంగాణ IT एक्सपोर्ट्सలలో మన तहरीके तेलंगाना के जहदकार और ऐसे वक्त जब अलहदा रियासत की तश्कील ख्वाब और मजाक नजर आता था, ऐसे वक्त में TRS का परचम उठाने वाले नौजवान हरकियाती कायद तारिक अंसारी रियासती अखिलती कमीशन चेयरमैन नामजद, चीफ मिनिस्टर ने अहकामात हवाले किया। सबर का फल चेयरमैन नामजद करने पर आम व खास में खुशी की लहर और जश्न। तेलंगाना की तहरीक में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के हमरा तवील अरसे जद्दोजहद में शामिल अंसारी को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत तेलंगाना के अखिलती कमीशन की हैसियत से नामजद किया है। तारिक अंसारी जिला निजामाबाद के मशहूर व मारूफ खानदा जनाब अख्तर मोहिउद्दीन अंसारी मरहूम के फर्जंद है और वो एक आला तालीमी याफ्ता, संजीदा और बेलौस कायद की हैसियत से अपनी शनाख्त बना चुके हैं। वो अपने वालिद के कायम करदा गौतमी डिग्री कॉलेज के डायरेक्टर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दे रहे। तारिक अंसारी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के चेयरमैन की हैसियत से नामजद करने पर इजहार तशक्कुर किया और कहा कि वो इस गिरा खदर जिम्मेदारियों पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। मिस्टर अंसारी को रियासत तेलंगाना के अखिलती कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से नामजद करने पर अवाम के तमाम तबकात में खुशियों और मसरतों की लहर दौड़ गई। तारिक अंसारी ने
उन्हें चेयरमैन अक़लियती कमीशन नामजद किए जाने पर बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में सजदा शुक्र बजा लाया और मुबारकबाद देने वाले तमाम अहबाब का फर्दन शुक्रिया अदा किया। तहरीक तेलंगाना के जहदकार और ऐसे वक्त में जब अलहदा तेलंगाना का नारा मजाक समझा जाता था, उस वक्त पार्टी का परचम थामने वाले हरकयाती जमासाल कायद तारिक अंसारी रियासती अक़लियती कमीशन चेयरमैन नामजद, जिसके बाद अवाम और इनके चाहने वालों में खुशी की लहर। हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी नायब सदर व फुलान के नौजवानों ने जश्न मनाते हुए जमकर आतिशबाजी की और अवाम में मिठाई तकसीम की। इस मौके पर हरकयाती सोशल वर्कर व नायब सदर हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी नदीम अहमद ने अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी को दिली मुबारकबाद दी और चीफ मिनिस्टर केसीआर से इजहार तशक्कुर किया। निज़ामाबाद के हरदिल अजीज कायद जनाब तारिक अंसारी साहब को तेलंगाना स्टेट के माइनॉरिटी चेयरमैन से ओहदा नवाजा गया। केसीआर साहब, हम केसीआर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो तेलंगाना के फ्रीडम फाइटर तारिक अंसारी साहब को जो पोस्ट दिया है वो काबिल कबूल है और हमको ये तयक़ुन है कि जो भी पोस्ट दिया गया तारिक अंसारी साहब को उस पर भरपूर उन्होंने काम करेंगे और तेलंगाना के स्टेट के अंदर माइनॉरिटी मुस्लिम लोगों का जो भी है वो अक़लियती जो कायद जो है तारिक अंसारी साहब, वो बहुत जल्द हर वो फैसले, हर वो कदम, हर वो साथ देंगे माइनॉरिटी का। हम केसीआर साहब का निज़ामाबाद की जानिब से तेलंगाना में डिस्ट्रिक्ट निज़ामाबाद फुलान के अंदर से हम ये बयान दे रहे हैं कि जो तारिक अंसारी साहब को पोस्ट दिया है, हम केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। निर्मल जिले के भैंसा में कांग्रेस पार्टी की क़ियादत में हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। जिले के एआईसीसी कायद महेश्वर रेड्डी की निगरानी में पैदल यात्रा मुनाकिद की गई। निर्मल जिले के भैंसा टाउन में कांग्रेस पार्टी की क़ियादत में हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम के तहत एआईसीसी के मुताबिक प्रोग्राम कमेटी चेयरमैन ए महेश्वर रेड्डी की क़ियादत में पैदल यात्रा मुनाकिद की गई, जिसमें साबिका पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी, साबिका डिप्टी सीएम दामोदर राज नरसिम्हा, पीसीसी नायब सदर एम मोहन राव, मुदल हल्का इंचार्ज आनंद राव पाटिल ने हिस्सा लिया। ये पैदल यात्रा शिवाजी चौक से कुबेर चौरास्ते तक अमल में रही। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। शहर के अहम शाहराहों पर एएसपी कांतिलाल सुभाष पाटिल की क़ियादत में पुलिस बंदोबस्त को बड़े पैमाने पर मुनाकिद किया गया। टाउन सीआई श्रीनिवास, रूरल सीआई चंद्रशेखर राव, मुदल सीआई विनोद कुमार, एसआईस ने ट्रैफिक में खलल ना होने के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किया। इस प्रोग्राम में माइनॉरिटी इंचार्ज एम ए लतीफ, अमजद, दीगर कांग्रेस कायदीन मौजूद थे। प्रिय मित्रों, अखिल भारत कांग्रेस कमिटी प्रोग्राम्स इंप्लीमेंटेशन कमिटी चेयरमैन మీ అభిమాన నాయకుడు మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు, ప్రియ మిత్రులు ప్రేమ్ సాగర్ రావు గారు, పెద్దలు గౌరవనీయులు సిఎల్పి లీడర్ పట్టి విక్రమార్క గారు, పెద్దలు గౌరవనీయులు జీవన్ రెడ్డి గారు, పెద్దలు గౌరవనీయులు మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి దామోదర్ రాజ్ నరసింహ గారు, కోదండ రెడ్డి గారు, మదన్ మోహన్ గారు, అనిరుద్ రెడ్డి గారు, జంగా రాఘవ రెడ్డి గారు, సాజిద్ ఖాన్ గారు, మరి పాటిల్ గారు, ప్రియ మిత్రులారా మీ అందరికీ నమస్కారం తెలియజేస్తూ నేను 2 నిమిషాలు మాట్లాడతా. బాసరలో ట్రిపుల్ ఐటీ పెట్టి సరస్వతి దేవాలయం దగ్గర ట్రిపుల్ ఐటీ పెడితే నిస్సిగ్గుగా కేంద్రంలో బీజేపీ, రాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్య వైఖరితో डॉक्टर प्रीति के खुदकशी के जिम्मेदारान को हुकूमत कड़ी सजा दिलाए। एससी एसटी टीचर्स यूनियन जिला सदर रामचंद्र गायकवाड़ का मुतालबा। तलबा में खुदकशी की रोकथाम के लिए हुकूमत हाई स्कूलों से लेकर यूनिवर्सिटियों तक साइकोलॉजिस्ट के जरिए तलबा में शौर बेदारी लाए। एससी एसटी टीचर्स यूनियन जिला सदर रामचंद्र ने मुतालबा किया हाई स्कूल में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में ज़हनी हरासानी, रैगिंग ना किए जाने के लिए मुकामी पुलिस के ताउन से रोकथाम किया जा सके। मेडिकल तालिबा प्रीति को हरासानी करने वालों पर सख्त से सख्त इक़दाम के जरिए उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसे लोग जेल से जल्द वापस भी आएंगे, लेकिन डॉक्टर प्रीति लौटकर वापस आ नहीं सकती।
ऐसे कई वाक़ये नमूदार हो चुके हैं। हुकूमत सख्त इक़दाम के जरिए इन्हें कड़ी सजा दिलाते हुए आइंदा ऐसे वाक़यात को फिर से नमूदार ना होने के लिए तलबा में खुदकशी के वाक़यात की रोकथाम करें। इस प्रोग्राम में असातिज़ा एल नरेश, मंजुला, कविता, श्रीनिवास, शैलजा दीगर भी मौजूद थे। ఎప్పుడైతే వేధిస్తూ ఉన్నాడో ఆ విషయాన్ని అక్కడ కాలేజీ యాజమాన్యానికి, అక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీసులకు, ఇక్కడ తల్లిదండ్రులకు కూడా వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది. ఇక్కడ ఎవరు కారకులు, ప్రీతి సావుకు ఎవరు కారకులు అని మనం ప్రశ్నించినట్లయితే ఒక దిక్కు సమాజంతో పాటు అక్కడ ఉన్నటువంటి అందరు కారకులు అందరూ హత్య చేసిన వాళ్ళేగా భావించాలి. ఎందుకంటే అటు పోలీసులకు కూడా ఆమె తనపై జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయం, తోటి సీనియర్ విద్యార్థి చేస్తున్నటువంటి వేధింపులు, సైకాలజికల్గా మానసికంగా చేస్తున్నటువంటి వేధింపులు అక్కడ హెచ్ఓడి గారికి చెప్పారు, ప్రిన్సిపల్ గారికి చెప్పారు, ఈవెన్ పోలీస్ స్టేషన్ కూడా మెసేజ్ ఇచ్చారు. దానికి హెచ్ఓడి కంటి తుడుపుగా ఆఫీస్కు పిలిపించి ఏదో చిన్నగా మందలించండి చేసి ఆ మందలింపు ఆమెకు తృప్తినివ్వలేదు. ఆ మందలింపు ఆమె ప్రాణాన్ని కాపాడలేకపోయింది. ఆ మందలింపు ఏదైతే కంటి తుడుపుగా హెచ్ఓడి గారు చేశారో అందుకోసం నేనేమంటున్నా అంటే అక్కడ ఉన్న హెచ్ఓడి కానీ माह सयाम में तमाम तर सहूलतें फ्राहम करने और शब बारात के खुसूस में खबरस्तानों में रोशनी व सफाई के लिए एमआईएम वफद की म्यूनसिपल कमिश्नर चित्रा मिश्रा से मुलाकात, तहरीरी याददाश्त हवाले की। माह सयाम में हर मुमकिन सहूलत फ्राहम करने म्यूनसिपल कमिश्नर चित्रा मिश्रा का तयक़ुन, अवाम बिलखुसूस रोजदारों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो, मसाजिद के रास्तों पर मुरम्मंदोज़ी और साथ साथ कुत्तों को पकड़कर दूसरे मुकाम पर मुंतकिल करने पर भी जोर दिया गया। एमआईएम निजामाबाद वो इंचार्ज शकील अहमद फाजिल का बयान। एमआईएम के वफद जिसमें एमआईएम निजामाबाद इंचार्ज वो सीनियर कॉर्पोरेटर शकील अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर इदरीस खान वो तमाम ही कॉर्पोरेटर्स शामिल हैं ने आज निजामाबाद वो एमआईएम इंचार्ज शकील अहमद फाजिल की क़ियादत में म्यूनसिपल कमिश्नर चित्रा मिश्रा से खुसूसी मुलाकात की और तहरीरी नुमाइंदगी पेश करते हुए शब बारात बिलखुसूस माह सयाम व ईद उल फित्र की तैयारियों के अंबार पर तवील बातचीत की। एमआईएम कायदीन ने शब बारात के मौके पर शहर के तमाम ही खबरस्तानों में रोशनी और सफाई के इक़दाम करने और माह सयाम में नलों से 2 वक्त सहर व अफ्तार के औकात पानी की सरबराही, मसाजिद के रास्तों पर मुरम अंदोजी व डस्ट पाउडर और मसाजिद के करीब रोशनी का नस्म और इसके अलावा ईद उल फितर की तैयारियों के लिए म्यूनसिपल से जल्द टेंडर करते हुए कामों के आगाज करने की ख्वाहिश जाहिर की और खुसूसी फंड से पसमानदा डिवीजन 12, 13, 14, 30 और 31 में मसाजिद के रास्तों की तामीर और रोशनी के इंतजामात की ख्वाहिश जाहिर की। इसके अलावा आवारा कुत्तों की कसरत से अवाम परेशान है और जान का खतरा है, इस पर तवज्जो देने की जरूरत पर जोर दिया, जिस पर म्यूनसिपल कमिश्नर चित्रा मिश्रा ने तमाम तैयारियों और सहूलतों को यकीनी बनाने और कुत्तों को पकड़ने के इक़दामात का तयक़ुन दिया। आज कमिश्नर मैडम से मुलाकात की है जिसमें डिप्टी मेयर और तमाम ही कारपोरेटर्स ने हिस्सा लिया। मिलने का मकसद ये था कि आने वाले दिनों में रमज़ान शरीफ आ रहे हैं और साथ ही साथ शब बारात के लिए ख़बरस्तानों की साफ़ सफाई के ताल्लुक़ से भी बातचीत हुई। खुसूसन रमज़ान के ताल्लुक़ से जो सुबह मसाजिद के सामने जो भी अनडेवलप एरिया है वहाँ पर रोडों पर मोरमंदाजी और डस्ट पाउडर वगैरह डालते हुए और लाइटों का इंतज़ाम तमाम ही अमूर पे बातचीत हुई। मैडम पॉजिटिव वे में हमारे को जवाब दिए और साथ ही साथ आज जोन मीटिंग भी है। जोन मीटिंग में भी ये मसाइल को सामने रखते हुए आगे बढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि रमज़ान तमाम ही लोग खुशू के साथ मनाएंगे और हम अपनी म्यूनसिपाल्टी की तरफ से इंशाल्लाह ज़रूर जितना मुमकिन हो सके आवाम की सहूलत देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह 1-2 दिन में तमाम ही कारपोरेटर्स जिसमें डिप्टी मेयर और तमाम ही कारपोरेटर्स मसाजिदों के तरफ दौरा करते हुए जायज़ा लेकर कहाँ पर क्या चीज़ की ज़रूरत है देखते हुए उसको जल्द से जल्द टेंडर बुलाकर उसका काम रमज़ान से पहले करते हुए तमाम ही रोज़दारों को ज़्यादा सहूलत देंगे बोलकर बातचीत हुई। और साथ ही साथ रमज़ान में जो ट्रैफिक मसाइल हैं उसको भी लेकर टाउन प्लानिंग और ट्रैफिक
डिपार्टमेंट को लेकर एक मीटिंग जल्द ली जाएगी, उसका मसले का हल निकाला जाएगा। जो हेवी ट्रक्स खिला रोड से गुजर रहे हैं उसको कहाँ पर मोटिवेट करते हैं उसके ताल्लुक से भी डिस्कशन हुआ। इंशाल्लाह ये तमाम अमूर पे बातचीत हुई। और साथ ही साथ जो रात में कुत्ते जो मार्केट में ज़्यादा फिर रहे हैं इसको भी सख्त एक्शन के साथ रुबे अमल करते हुए कुत्तों को पकड़ के डिपोर्ट किया जाएगा। हज का इरादा रखने वाले आज़मीन जिनके पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट मिलने की तारीख हज के फॉर्म्स दाखिल करने की तारीख के बाद मिलने पर परेशान वो फिक्रमंद। सदर जमीयतुल उलमा की इस ज़िमन में कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद सी नागराजू से नुमाइंदगी, पुरअसर नुमाइंदगी पर पासपोर्ट दफ्तर निजामाबाद में आज़मीन के लिए खुसूसी काउंटर का आगाज। आज़मीन जिनके पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त दाखिल करने पर फॉर्म्स दाखिल करने की तारीख खत्म होने के बाद पासपोर्ट मिलने की तारीख आने पर काफ़ी परेशान और अपने मुक़द्दस सफ़र हज के लिए फ़िक्रमंद नज़र आ रहे थे, जिसके इत्तला पर सदर जमीयतुल उलमा हाफिज़ लई खान ने ऐसे आज़मीन जिनके पासपोर्ट नहीं है और तारीख की दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था कि हमरा पुलिस कमिश्नर सी नागराजू से खुसूसी मुलाकात की और याददाश्त हवाले करते हुए जल्द इंक्वायरी और पासपोर्ट देने की ख्वाहिश जाहिर की। सदर जमीयतुल उलमा हाफिज़ लई खान की नुमाइंदगी के बाद निजामाबाद पासपोर्ट ऑफिस पर आज़मीन के पासपोर्ट के लिए खुसूसी काउंटर कायम किया गया, जिससे फॉर्म्स दाखिल करने की तारीख से कबल पासपोर्ट मिलने की उम्मीद जाहिर की जा रही, जिस पर आज़मीन ने सदर जमीयतुल उलमा हाफिज़ लई खान का शुक्रिया अदा किया। यहाँ लेते एक वक्फा। कंसल्टेंसी स्टडी अब्रॉड, थर्ड फ्लोर 303 सनता एक्सटेंसी कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट टू तनिष्क ज्वेलर्स हिमायत नगर हैदराबाद। 47842279333 7842250555। निजामाबाद में राब्ता करें बिलाल खान 9010855782। एडोग्रो ओवरसीज यूके बेस्ड कंसल्टेंसी और जॉब असिस्टेंस। क्या आप बैरून मुमालिक में तालीम के ख्वाहिशमंद हैं? फिक्रमंद ना हो, हम रहनुमाई करेंगे जो आपके लिए मुफीद साबित होगी और आपके लिए सुनहरी मौका। एडोग्रो की खिदमत आपके लिए। बैरून मुमालिक में तालीम के लिए हमारी रहनुमाई वो खिदमत से इस्तेफादा करें। यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप की सहूलत, आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए मुफीद कोर्सेज में दाखिले की सहूलत, हमारे फराहम करदा वीजा की हर हाल में कामयाबी की जमानत, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मशहूर व मारूफ यूनिवर्सिटीज में दाखिले, मुफ्त रहनुमाई माहिरीन की निगरानी में, वीजा की फराहमी, रोशन मुस्तकबिल के लिए एडोग्रो की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। एडोग्रो ओवरसीज कंसल्टेंसी स्टडी अब्रॉड, थर्ड फ्लोर 303 सनता एक्सटेंसी कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट टू तनिष्क ज्वेलर्स हिमायत नगर हैदराबाद। सेल नंबर 7842279333 और 7842250555। निजामाबाद में राब्ता करें बिलाल खान 9010855782। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं शहर निजामाबाद का खल्ब बाबन साहब की पहाड़ी के करीब 16 एकड़ पर मुश्तमिल न्यू लेआउट वेंचर वादी मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह 42 यानी 42 लाख में आलिशान मकान तामीर करके दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग का आगाज हो चुका है। 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके। हर आम व खास के साथ सरकारी मुलाजमीन भी बैंक की सहूलत के पेश नजर प्लॉट बुकिंग्स करवा रहे हैं। जो हजरात अभी तक वेंचर का मुशाहिदा नहीं किए वो एक मर्तबा जरूर तशरीफ लाए। तमाम सहूलतों से आरास्ता इस वेंचर में प्लॉट लेना आपके लिए महज
एक साल में बहुत करामत साबित होगा इंशाल्लाह। फिर से एक मर्तबा आपको ये बता दें कि शहरियान निजामाबाद बिलखुसूस जाती मकान के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए खुशखबरी। 125 गज पर मुश्तमिल मकान 42 लाख रुपये में। जी हाँ, 42 लाख रुपीस में 125 गज पर मुश्तमिल मकान। इब्तिदाई रकम महज 12 लाख अदा करने पर प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। बाकी रकम के लिए बैंक लोन की सहूलत दी जाएगी, जिसमें आपको माहाना 15,000 रुपए अदा करना होगा। बुकिंग्स जारी है, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। 9849431967 और 7396083005 या फिर 9866006009 पर हमसे राब्ता करें। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, बोधर रोड, निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ, एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, USG, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेसिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व नियोनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत, नॉर्मल जख्मियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। 10वीं इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के लिए एडिशनल कलेक्टर बी चंद्रशेखर की तालीमी ओहदेदारों से इंतजामात को लेकर मुशावरत। तलबा इन्विजिलेटर को सेलफोन या किसी इलेक्ट्रॉनिक अशिया न लाने की हिदायत। जिले में 10वीं जमात और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात को लेकर एडिशनल कलेक्टर बी चंद्रशेखर ने इम्तिहानी सेंटरों इम्तिहानात की तैयारियों के मुताल्लिक़ हुक्मनामा जारी करते हुए बताया कि इंटरमीडिएट के इम्तिहानात इस महीने की 15 तारीख से 4 अप्रैल तक रोजाना सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक मुनाकिद किए जाएंगे और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात 3 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक रोजाना सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक मुनाकिद होगी। अप्रैल 10 तारीख को लिए जाने वाले साइंस पर्चे को सुबह 9 बजे से 12:50 तक इम्तिहान का वक्त होगा। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर बी चंद्रशेखर ने जिला कलेक्टर में अपने चैम्बर में इम्तिहानात को लेकर शोबे के ओहदेदारों से मुशावरत की। बताया कि जिले में 10वीं जमात के 21,707 तालिबे इल्म इम्तिहानात में हिस्सा लेंगे, जिसमें से 21,590 तलबा रेगुलर के 117 तलबा प्राइवेट होंगे। तलबा की तादाद के हिसाब से जिला भर में 138 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए हैं। इसी तरह इंटरमीडिएट इम्तिहानात में जिले में जुमला 35,017 तलबा हाजिर होंगे। इनमें 4,354 तलबा वोकेशनल कोर्स के तलबा होंगे। इंटरमीडिएट इम्तिहानात के लिए जिले में 54 मराकज का क़याम अमल में लाया गया। तलबा को वक्त से पहले इम्तिहानी मराकज पर हाजिर रहने की ताकीद की गई। किसी भी परेशानियों धांधलियों से पाक इम्तिहानात लिए जाने के लिए एडिशनल कलेक्टर ने ओहदेदारों को ताकीद की। इम्तिहानी सेंटरों के आसपास जरूरत के मुताबिक पुलिस को तयन करते हुए
144 सेक्शन लागू करने की हिदायत दी गई। इम्तिहान के औकात के दौरान करीब आसपास के ज़ेरॉक्स सेंटरों को बंद रखने की ताकीद करें और आशा वर्कर्स एएनएम्स को इम्तिहान सेंटरों में ड्यूटी डालें। धूप की शिद्दत को देखते हुए इम्तिहानी सेंटरों में ORS पैकेट, फर्स्ट एड किट्स साथ रखें। इमरजेंसी 108 एम्बुलेंस का भी इस्तेमाल में लाने के लिए ड्यूटी पर तैनात अमले को अलर्ट रहने की हिदायत दी। सेंटरों में सैनिटाइजर करवाए, कोविड के कानून को अमल में लाए। एग्जाम सेंटरों में पहले ही से सीसी कैमरों को जांच ले। सवाली पर्चों को सीसी कैमरों की रिकॉर्डिंग के दौरान ही सील खोले। एग्जाम हॉल में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अशिया लाने पर मना करें। तलबा को इन्विजिलेटर को भी एग्जाम के दौरान फोन के इस्तेमाल पर मना करें। इस मौके पर इंटरमीडिएट तालीमी ओहदेदार रघुराज, DEO दुर्गा प्रसाद, एग्जाम मुआविन कमिश्नर विजय भास्कर, DMHO डॉक्टर सुदर्शनम, DPO जयासुधा, MHO साजिद दीगर भी मौजूद थे। सेहत ही जिंदगी का सही राज है। सेहतमंदी के लिए बेहतर ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। डॉक्टर भानुप्रिया का खवातीन के लिए मुफीद मशवरा, शऊर बेदारी। लायंस क्लब ऑफ इंदौर की क़ियादत में नागाराम के डाइट कॉलेज में सेहतमंदी के मुताल्लिक़ शऊर बेदारी लाई गई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी डॉक्टर ए भानुप्रिया ने तालिबात से मुखातिब होते हुए बताया कि खवातीन में खून की कमी के मसाइल होते हैं। बेहतर ग़िज़ा के ज़रिए इस मसले को हल किया जा सकता है। खवातीन खुसूसी तौर पर जंक फूड से दूर रहें। सेहत के मुताल्लिक़ कोई भी मसला पैदा होने पर डॉक्टरों से रुजू होते हुए अपना इलाज करवाएं। ज़ाती तौर से कोई भी इलाज ना करें। इस मौके पर डॉक्टर भानुप्रिया ने तालिबात की सेहत के मुताल्लिक़ मसाइल पर सवालात का हल बताया। इस प्रोग्राम में कॉलेज प्रिंसिपल T श्रीनिवास, लायंस क्लब इंदौर सदर रमेश, खाजिन CH गंगादास, प्रोग्राम चेयरमैन A लिम्बाद्री दीगर भी मौजूद थे। మీ గ్రూప్ వాళ్ళు బాగుంటేనే మన యంగ్స్టర్స్ బాగుంటేనే మన దేశం కూడా బాగుపడుతుంది. మీ అందరూ హెల్తీగా ఉంటేనే కదా ముందుకి మన ఇండియాని కానీ కంట్రీని కానీ దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళగలుగుతాం. సో మెయిన్గా అందుకే ఈ అడాలసెంట్ హెల్త్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మనం కూడా మన పెద్దవాళ్ళకి సలహాలు ఇవ్వచ్చు, చిన్నపిల్లలకి కూడా సలహా ఇవ్వచ్చు. మీరు మధ్య వయసులో ఉన్నారు కాబట్టి మీ హెల్త్ మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటేనే మనం ముందుగా देशाన్ని కూడా కాపాడగలుగుతాం. సో మీరు అందరూ ఈ CM KCR की जानिब से जिले के TRS सीनियर कायद तारिक अंसारी को रियासती तेलंगाना माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन की हैसियत से नामजद। जिले के माइनॉरिटी हलके में खुशी का इजहार। तेलंगाना रियासती माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन की हैसियत से निजामाबाद के अलहदा तेलंगाना के मुजाहिद BRS पार्टी कायद तारिक अंसारी नामजद। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी से तारिक अंसारी ने मिनिस्टर क्वार्टर्स में जाकर मुलाकात करते हुए मिनिस्टर के ताउन से रियासती माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन नामजद किए जाने पर इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने तारिक अंसारी को गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद दी। मिठाई खिलाते हुए ऑल द बेस्ट कहा। तारिक अंसारी TRS पार्टी में आगाज से अलहदा तेलंगाना की जद्दोजहद में शामिल रहे। इस मौके पर रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने खुशी का इजहार किया। CM KCR से वजीर प्रशांत रेड्डी ने खुसूसी तौर पर इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर इनके हमरा MLC राजेश्वर राव भी मौजूद थे। रेलवे में मुलाजिमत का झांसा देते हुए कई अफराद से पैसे वसूल करने वाला नवीपेट मंडल के फकीराबाद गांव का रहने वाला नरेश को मुतासरीन ने पकड़कर वन टाउन पुलिस के हवाले किया। शहर में नरेश नामी एक धोखेबाज ने सेंट्रल रेलवे में मुलाजिमत दिलाने के बहाने कई लोगों से पैसे लेकर अवाम को टोपी डाला। बताया जाता है कि जिले की नवीपेट मंडल के फकीराबाद का रहने वाला नरेश नामी शख्स ने सेंट्रल रेलवे में कुछ मखलूआ जायदादों पर मुलाजिमत दिलाने का झांसा देते हुए फीकस 50,000 से 1 लाख रुपए की रकम वसूल करते हुए झांसा दे रहा था। कुछ अफराद ने शक की बिना पर नरेश की असलियत मालूम करने पर पता चला कि वो एक बड़ा धोखेबाज है। नरेश साउथ सेंट्रल रेलवे के नाम से नकली ID कार्ड का इजाद करते हुए अवाम को धोखे दे रहा था। आज तक किसी भी फर्द को कोई काम या मुलाजिमत ना मिलने पर मुतासरा अवाम ने सख्ती बरतने पर वो कई दिन गायब रहा। इसी तरह जुमे के दिन रेलवे हुदूद में कुछ अफराद ने उसे पकड़कर वन टाउन पुलिस के हवाले किया। मालूम हुआ कि नरेश ऐसे कई बेरोजगारों का पैसा लेते हुए गरीब अवाम को झांसा देता रहा।
जलसे दस्तार बंदी मदरसा फैजुल कुरान फतहुल्लाह पुर 11 मार्च बरोज हफ्ता बाद नमाज मगरिब बामुकाम मदरसा अरबिया फैजुल कुरान को कामयाब बनाने की मुफ्ती इमरान खान खासमी सदर जमीयतुल उलमा कामारेड्डी की मुसलमानों से अपील। मदरसा अरबिया फैजुल कुरान फतहुल्लाह पुर के जिम्मेदारान हाफिज मोहम्मद अब्दुल रहीम, हाफिज मोइन अकबर, मोहम्मद कबीरुद्दीन और सैयद यूसुफ साहब पर मुश्तमिल एक वफद कामारेड्डी जिले दफ्तर जमीयतुल उलमा कामारेड्डी पहुंचकर जमीयतुल उलमा के सदर हाफिज मोहम्मद फहीमुद्दीन मुनीरी के अलावा दीगर जिम्मेदारान से मुलाकात की और मुनाकिदा इजलास मुताबिक 11 मार्च 2023 बरोज हफ्ता बाद नमाज मगरिब बामुकाम मदरसा अरबिया फैजुल कुरान ट्रस्ट फतहुल्लाह पुर मंडल बिचकुंदा जिला कामारेड्डी की कामयाबी के लिए दुआओं की दरख्वास्त की। इस मौके से मोहतरम मौलाना मुफ्ती इमरान खान खासमी साहब सदर सिटी जमीयतुल उलमा ने फतहुल्लाह पुर में मुनाकिदा अजीमुश्शान फकीदुल मिसाल सालाना जलसा वो दस्तार बंदी को कामयाब बनाने की अपील करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया कि 5 तलबा हिफ्ज़ कुरान मजीद मुकम्मल करने की सादत हासिल करेंगे। नेज़ हिंदुस्तान के मुमताज व मायनाज आलिम दीन हजरत मौलाना PM मुजम्मिल साहब रशादी वाला जाही दामद बरकातहू बेंगलुरु का खुसूसी खिताब होगा, जबकि जलसे की सदारत खादिम मिल्लत हजरत हाफिज मोहम्मद फहीमुद्दीन मुनीरी साहब दामद बरकातहू नायब सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा फरमाएंगे, जबकि मदुआइन खुसूसी उस्ताजुल असातिज़ा मुफस्सिर कुरान हजरत मौलाना शेख अयूब साहब इशाती पाटन बोरी दामद बरकातहू व मोहतरम हाफिज मोहम्मद लई खान साहब सदर जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद, मोहतरम मौलाना मुफ्ती शेख जाबिर अहमद इशाती साहब बोधन मंजिला के अलावा इलाके के उलमा व हुफ्फाज शिरकत फरमाएंगे। वाज़ेह रहे कि खवातीन के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम भी रहेगा। नेज़ जलसे के तमामी शुरका के लिए ताम का नज़्म भी रहेगा। इस मौके पर खारी मुजाहिद सिद्दीकी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा गंभीराव पेट, हाफिज मोहम्मद अब्दुल अजीज साहब सदर जमीयतुल उलमा रमायन पेट, हाफिज मोहम्मद अब्दुल वाजिद अली खान हलीमी सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा कामारेड्डी ने जिला कामारेड्डी के अलावा मुतसिल अजला के आमदुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में शिरकत की पुरखुलूस गुजारिश की। हमारे लिए बड़ी खुशी और मसरत का मौका है कि मदरसा अरबिया फैजुल कुरान फतहुल्लाह पुर मंडल बिचकुंदा जिला कामारेड्डी का अज़ीमुश्शान जलसे दस्तारबंदी व इस्तक़बाल रमज़ान, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से हज़रत मौलाना PM मुजम्मिल साहब वाला जाही दामद बरकातहू के अलावा दीगर उलमा इकराम तशरीफ़ ला रहे हैं। लिहाजा आमतुल मुस्लिमीन से हम जमीयतुल उलमा कामारेड्डी के ज़िम्मेदारान गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँच कर कामयाब बनाएँ और उलमा इकराम के बयानात से इस्तेफ़ादा करें। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील का मकसद तरक्की, खुशहाली और बेरोजगारी का खात्मा। BRS हुकूमत इन ख्वाबों को पूरा करने में 100% कामयाब। जिले में एयरपोर्ट का क़याम ज़ेरे गौर। MLC के कविता। शबे बारात व माह सयाम की तैयारियों में कोई कसर बाकी न रहे। मसाजिद के रास्तों की मरम्मत व अतराफ रोशनी के साथ साथ ईद उल फितर की तैयारियों के लिए जल्द टेंडर किया जाए और कुत्तों की कसरत पर काबू के लिए इक़दाम जरूरी। MIM कायदीन की म्युनिसिपल कमिश्नर को यादगार। तहरीके तेलंगाना के जहदकर व हरकियाती जमात साल BRS सीनियर कायद तारिक अंसारी, तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन नामजद चीफ मिनिस्टर ने अहकामात हवाले किए। अवाम में खुशी की लहर व जश्न। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ TV से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।